Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to start a new chapter of our science book, that is measurement and motion. So let's start reading measurement and motion. Students, measurement plays an important role in our life. We often talk about things like what is the length of this room? How much time will be taken by us to go to school? How much sugar is required for preparing halwa? Measurements are necessary to know the answer to such questions. Students, as you know, measurement is very important for all of us. It plays an important role in our life. डेली रूटीन लाइफ में हम नॉर्मली क्वेश्चंस पुट करते हैं. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रूम? इस रूम की लेंथ कितनी है? व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय अस टू गो टू स्कूल? हमें स्कूल जाने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हलवा? हलवा बनाने में कितनी शुगर की रिक्वायरमेंट है? सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. Proper measurement are very important in our day-to-day life. We can't manage things just by guessing about different quantities. हमें हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को बताने के लिए डेली लाइफ में प्रॉपर मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. हम गैस करके किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते, हम उसकी क्वांटिटी को नहीं बता सकते. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज माला टेलर्स wants 1 meter of cloth for her dress. If the shopkeeper gives the cloth just by guessing, it may turn out to be less or more than the tailor's requirement. Suppose माला को अपनी यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस के लिए 1 मीटर क्लॉथ चाहिए. वो शॉपकीपर के पास जाती है. शॉपकीपर अगर उसको विदाउट मेजरमेंट ही, गैस करके ही अगर वो उसको क्लॉथ कट करके देता है, देन हो सकता है वो क्लॉथ 1 मीटर से कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लॉथ 1 मीटर से ज़्यादा कट हो जाए. ओके, इन फर्स्ट केस द ड्रेस वुड नॉट मेट, एंड इन द सेकेंड केस देयर वुड बी वेस्टेज ऑफ क्लॉथ. अगर 1 मीटर से कम हुआ तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उसकी यूनिफॉर्म, उसकी ड्रेस ना तैयार हो सके, और अगर वो 1 मीटर से ज़्यादा क्लॉथ कट कर दिया तो हो सकता है क्लॉथ जो है वो वेस्ट जाए. सो नन ऑफ दिस इज़ डिज़ायरेबल. हैंस द शॉपकीपर करेक्टली मेजर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड गिव्स इट टू माला. इसलिए शॉपकीपर 1 मीटर करेक्ट क्लॉथ मेज़र करके ही माला को देगा. वी कैन थिंक ऑफ मैनी more suitable examples from our daily life that tell us what we can't do without proper measurement of different physical quantities. हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे हम विदाउट मेजरमेंट के कुछ भी चीज़ नहीं दे सकते. डू यू नो quantities which are measurable are called physical quantities. जो quantities हम measure कर सकते हैं, that are known as physical quantities. Now students, next question is what is measurement? Measurement क्या है? Suppose we are asked to find the length of a given table. In the absence of any instrument, we may decide to use the span of our hand. For this purpose, we carry about the measurement and may come with the answer that the length of given table is 6 hand span. Students, suppose हमें किसी टेबल की लेंथ फाइंड आउट करनी है और हमारे पास मेजरमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है. मीन्स हमारे पास ना तो कोई स्केल है, ना हमारे पास मेजरिंग टेप है जिससे हम टेबल की लेंथ को फाइंड आउट कर सकें. सो वी मे डिसाइड टू यूज़ द स्पैन ऑफ आवर हैंड. हम अपने हैंड स्पैन से, जस्ट लाइक दिस इज़ आवर
हैंड स्पैन। हम अपने हैंड स्पैन से कोशिश करेंगे कि हम टेबल की लेंथ को मेज़र कर सकें। ओके, एंड द आंसर विल बी दैट द टेबल इज 6 हैंड स्पैन। जो हमारी टेबल की लेंथ है दैट वुड बी 6 हैंड स्पैन। क्लियर? नाउ close look at this measurement. This is your hand span and we measure the length of table like this using hand span. We have used two things to express it. We have used a number 6 and a fixed non-quantity hand span. The latter is called the unit and the former is the number that tells us how many times does our unit get contained in the length to be measured. Students, we have used for measuring that length of table, we have used our hand span. हमने hand span को use किया and the conclusion is that कि the length of is 6 hand span. 6 hand span. Okay, now student, here this 6 is the number. Okay, and this hand span is the unit and this number 6 represent how many unit contained in the length of table. Means हमारे कितने hand span use हुए हैं for measuring the length of table. So this is 6 hand span. So here hand span is the unit and 6 is the number. Clear, students? We thus realize that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some fixed quantity that is called unit. We need both the number as well as the unit to express the measurement in proper and complete way. किसी भी चीज़ की measurement करते समय हमें units की requirement होती है. ओके, विदाउट यूनिट हम उसकी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर सकते. जस्ट लाइक 10 किलोमीटर, ओके, 5 लीटर, 25 सेंटीमीटर. सो हेयर किलोमीटर, लेंथ एंड सेंटीमीटर, all these are units that represent proper measurement. Now here is an activity for you. Ask the students to measure the width of classroom desk study table using hand span as a unit, and then the result may be summarized in the form of table as shown below. Students, what you have to do, you have to measure the width of your classroom desk. आपके क्लासरूम में जो डेस्क है या फिर स्टडी टेबल है, you have to measure the length of this डेस्क और स्टडी टेबल यूजिंग योर हैंड स्पैन. आपने हैंड स्पैन का यूज़ करके उस डेस्क या स्टडी टेबल की विड्थ को मेज़र करना है एंड देन द रिज़ल्ट में बी समराइज इन टेबल. जो रिज़ल्ट होगा वो आपने इस टेबल में मेंशन करना है. क्लियर? नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अबव एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से आप क्या ऑब्जर्व करते हो? The result for the length of same desk table as reported by students is not quite the same. जैसे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी अपनी अपनी हैंड स्पैन का यूज़ करके अपने अपने डेस्क स्टडी टेबल को मेज़र करेंगे. ओके, और हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा सबका डिफरेंट होगा. मीन्स किसी स्टूडेंट्स की लेंथ आएगी, ओके, किसी की आएगी 6 हैंड स्पैन, किसी की आएगी 7 हैंड स्पैन और किसी की आएगी 4 हैंड स्पैन. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ विथ ऑफ हैंड. हमारे हैंड पे डिपेंड करता है क्योंकि किसी बॉय या गर्ल का हैंड छोटा हो सकता है और किसी बॉय या गर्ल का हैंड बड़ा हो सकता है. ओके, द लेंथ ऑफ वंस हैंड स्पैन में डिफरेंट फ्रॉम अदर. सबके हैंड स्पैन्स जो होते हैं, लेंथ होती है, वो डिफरेंट होती है. इन दिस वे द लेंथ ऑफ अ फ्लोर मेजर्ड बाय डिफरेंट चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ फुट स्टेप विल नॉट बी क्वाइट सेम. और अगर हम फ्लोर की लेंथ को भी मेज़र करते हैं यूजिंग फुट स्टेप, हम अपने फुट स्टेप का यूज़ करके अगर फ्लोर की लेंथ को मेज़र करते हैं तो वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि किसी के फुट की लेंथ ज़्यादा होती है और किसी के फुट की लेंथ
कम होती है। सो इन दिस केस विच इज़ द मेजरमेंट रिजल्ट शुड देन बी एक्सेप्टेड एज द करेक्ट वन। सो अगर जो हमने मेजरमेंट की है क्या वो करेक्ट है? हियर देयर इज़ नो चॉइस, we can avoid this type of situation only if we have a unit that is same for the measurement done by all. Such an agreed and internationally accepted unit of given physical quantity is known as standard unit for the physical quantity. तो इस सिचुएशन में जब हमें नहीं पता कि किसी की हैंड स्पैन की लेंथ कितनी है, कम है या ज़्यादा है, करेक्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम इस यूनिट को अवॉइड करेंगे, ओके और एक ऐसी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट को एग्री करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी को करेक्ट मेज़र कर सके, ओके। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, टाइम एंड मास, ओके। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अगर हमने लेंथ को मेज़र करना है तो हम मीटर में मेज़र करेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम को मेज़र करने के लिए यूनिट्स होगी सेकेंड एंड फॉर मास इट विल बी किलोग्राम, ओके। सो फॉर मेजरिंग द लेंथ we have to use unit meter, for measuring the time we have to use second, and for measuring the mass we have to use the kilogram. These are the standard unit for measuring the basic physical quantity. Now students, do you know we have now a standard set of system of unit of different physical क्वांटिटीज़। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए अब हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है एंड दिस सिस्टम यूज एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। और ये स्टैंडर्ड सिस्टम पूरे होल वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है, मीन्स होल वर्ल्ड इसी स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करता है एंड दैट्स वाई दिस सिस्टम इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, okay. We usually use the short name SI unit for this unit. क्या यूज़ करते हैं इन यूनिट्स के लिए? SI, okay. So SI units of length is meter, SI unit of time is second, SI unit of mass is kilogram. So these are the standard, means international system of unit, SI system of unit. I hope this is clear to you. So you have to read this chapter, this topic from your science book. Thank you. Have a nice day.